Assalamu alaikum Pakistan and welcome to the One to One podcast, episode number 29. Joining me today is no one other than what I believe is Islamabad's first podcaster, Miraj Haq. Bro, it is an honor to have you on the show. And I just want to say that this episode is sponsored by One Athletics, the number one sporting brand in the UK, giving you sportswear from joggers to caps to t-shirt to dry fit, trousers, everything. So Miraj, it's an honor to have you. Thank you bro. so much. Before anything, I would like to say, जो भी ये बंदा है podcast देखे, please subscribe to Ali's channel, support him, like करो, share करो, comment करो, because this guy has a very, very bright future. Invest in his podcast. और I reached out to him myself because I see potential in him. अभी के बाद एक साल बाद मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह अली के पास. Oh, You're yes. gonna see that he's going to be big inshallah. Oh man, Miraj, it means the world, bro. It means the world. And and he did reach out to me. And initially, when I started all of this, bro, Khuda ki kasam, I used to YouTube Pakistani podcast, and jo pehle aata tha, it was you. I was like, theek hai. So I saw almost all your episodes. कि cutting किस तरह होती है, audio ये वो, and you were the person who gave me a boost कि कोई और भी तो कर रहा है, except for these big names, pehle. But man, now you're a big name yourself. No, Sabat, New York Film Academy, kya documentaries with Imran Khan. So bro, I want to discuss a lot of things with you. Yeah. But I want to start this entire journey of becoming an actor, going into journalism, theek hai? How did it all start? Matlab, did you know from day one motivation kya thi, kya system tha? यार कहानी लंबी है लेकिन फर्स्टली आई वांट टू से कि मेरा दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था मेरी फैमिली का ना पॉडकास्ट से या मीडिया इंडस्ट्री से. मोस्ट ऑफ माय फैमिली देयर इधर लॉयर्स या आर्मी, जो हर किसी के एक फैमिली का सेटअप होता है. बट आई रियलाइज वेरी क्विकली कि मेरा जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी ना वो ज़्यादा है. पढ़ाई में मैं अच्छा था लेकिन लापरवाह था. तो आई वॉज ऑलवेज इन टू लाइक आर्टिस्टिक थिंग, स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में था. लेकिन मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक था बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर तो मैं माय नाना वाज अ बिग इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ. तो वो हमेशा मैं कहती यार मैं कोई कहानी बताऊँ, तो मुझे कभी कोई कह देना कि कहानी सुना दो तो मैं कोई घंटा कहानियाँ स्टोरी टेलिंग शुरू कर देता. सो आई ऑलवेज न्यू दैट आई वाज destined to be somewhere in the media industry. I didn't know what exactly, but मुझे दिल था कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है जिसमें मैं behind the camera भी हूँ and I'm also in front of the camera. So when I was 14-15 years old, that's when we moved to the US. Yeah. And then I told my parents, I want to get into filmmaking, I want to get into acting and all these things, but they were like, यार इसका कोई scope नहीं, future नहीं है इसका. Yeah. So why don't you just focus on school, become a lawyer, the traditional thing that parents tell you. But they were like, at the end of the day, it's your decision. पढ़ाई कर लो, उसके बाद आगे जो करना है वो तुम्हारी मर्जी है. तो I did my high school from the US. उसके बाद मैंने university गया. I did my bachelor's in public administration. But during my last year in university, you would know this because you've been like a student and everything. तो आखिरी जो साल होता है बड़ा मुश्किल होता है. Yeah. और इधर पाकिस्तान में ख्याल में 18 क्रेडिट्स से तुम लोग लेते हो फुल टाइम लेते हो. इधर तो per subject I think 48 credits, 48 hours होते हैं. 48 आवर्स Yeah. उधर क्रेडिट बेस होता है. Yeah, तो yeah, it's 18 क्रेडिट्स. Yeah. बट मैंने 21 क्रेडिट्स लिए उस टाइम एंड आई वाज वर्किंग 3 जॉब्स एट द टाइम Yeah. बिकॉज़ आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी. Yeah. तो मैंने अपना ख़त्म किया. देन आई वेंट टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी. दैट एक्सपीरियंस ओपन माय आईज बिकॉज़ मुझे ये पता था कि मैं लैग क्या करूँ. सो आई वाजंट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा because people used to come to my house या दोस्त ये सारे कुछ वो हंसी मजाक मुझे कहते यार तुम बड़ा you're funny and this and that. When I used to try to do that on camera, तो मैं अपने आप को देख के मुझे होती यार नहीं, you look cringe. So I need to work on that aspect that I'm comfortable on camera and I sort of look okay on camera. Yeah. तो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से जाने से ये हुआ कि पहले दिन ही जब मैंने स्टार्ट किया ना तो it was very hands on. Yeah. They sent you out on the streets and they were like okay go record this and that. तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला and that's how the journey began. Yeah. So bro, अब जो मुझे चीज़ फील होती है कि पहली बात तो you knew what you had to do. Yeah. 99% of us, मतलब I can speak for all the kids who I've been in university with and in high school in Pakistan. Yeah. We don't know what we have to do or what we want to do. There's no exposure. Like our parents give us a few options and उनकी भी गलती नहीं है because society में ये है कि 2-3 options है. आप बैंक में जाओ,
आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट फर्म में जाओ, आप आर्मी में चले जाओ, 3-4 मैक्सिमम ऑप्शंस है. तो अब मुझे अगर आपकी तरह इफ आई वुड हैव नोन मैन कि यू नो लाइक आई हैव दिस पैशन व्हिच आई हैव राइट नाउ एंड एक्सपोजर होता, कोई यूनिवर्सिटी होती है इधर जो इतना डेप्थ में, अब लाइक यू कांट कंपेयर एनीथिंग टू द न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑब्वियसली, बट the way you set out, and now you know like I've been following you and you've reached that level, and of course mashallah you're still growing, man, you know, that you've just hit that point and you have to go ahead. Lekin ab now you know your podcasts, because major चीज़ है पाकिस्तान में जो अब ग्रो हो नहीं रही है सच, लेकिन हम ही हैं जो ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ को. सो हाउ डिड यू स्टार्ट आउट विद योर पॉडकास्ट? मतलब was there any specific motivation behind it, or you were just involved in journalism and you had that, you know, शौक था कि यार मैं इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करूँ आगे लेके? यार इसका टू पार्ट आंसर है. सबसे पहले टू गो बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू सेड दैट यू नो यू डोंट हैव एनीवन टू सी टू लुक अप टू, कोई इंस्पिरेशन नहीं होती. Yeah. I was listening to this other guy speak on YouTube the other day. He was saying कि देखो चाइना की कितनी ज़्यादा आबादी है, आज तक उनकी कोई क्रिकेट की टीम नहीं निकल सकी. ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई हीरोज़ नहीं थे या उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी. पाकिस्तान छोटे से मुल्क है, लेकिन हर दूसरा तीसरा लड़का क्रिकेट में घुसा हुआ है, और पाकिस्तान में अच्छे बैट्समैन निकल रहे, अच्छे बॉलर्स भी निकल रहे, बिकॉज यू हैड हीरोज, यू हैड यू नो वसीम अकरम, वकार, यूनुस, ये सर आपके पास एक था ना कि यार ये बंदे उधर हैं तो हम भी उधर जा सकते हैं. China on the other hand, if you look at China, उन्हें entrepreneurs को निकाला है. Yeah. You know, every other Chinese 10 में से एक दो उठा के देख लोगे ना, वो टेक में लगा हुआ है. Huawei देख लो, all these other companies, billionaires निकल रहे हैं, तो उनका उस तरफ फोकस था. Yeah. हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. माँ बाप को यही होता है कि यार 3 फील्ड्स हैं, डॉक्टर बन जाओ, आर्मी है, या वकील बन जाओ. Yeah, exactly. तो ये लोग कहते हैं कि यार उस चीज़ का स्कोप नहीं है. यार हर उस चीज़ का स्कोप है जिसका आप स्कोप बना लो. व्लॉगिंग का कोई स्कोप नहीं था पाकिस्तान में, जिन्हें स्कोप बना दिया, पूरा पाकिस्तान व्लॉगिंग करना शुरू किया. तो मैंने जब स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, मैं आई वाज यू नो इन बिकॉज आई लिव इन द यूएस, सो आई सॉ दैट कल्चर ओवर देयर. आई वाज लाइक व्हाई इज नोबडी डूइंग दैट ओवर हियर इन पाकिस्तान. तो मैं इधर आया, मैंने वो जुनेजो एक पॉडकास्ट करता था, कुछ लोग और थे पॉडकास्ट करते थे. So I was like, you know, there are 4 or 5 people doing podcasts over here, and if you compare this to the US, there are like hundreds of people doing thousands, podcasts, bro. Right? तो बहुत कम आपके पास opportunity to grow. Yeah. So I was like, yeah, I see like the throne empty right now. Yeah. Like 4-5 लोग हैं, okay, I can you know grab the throne. Yeah. Because my mindset is whatever I do, my competition is only Miraj. मेरा और कोई competition है नहीं. When I look at myself in the mirror, I'm like, I want to become the best version of myself. Yes. बस मैंने उसके साथ इसके साथ कंपेयर नहीं करना, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ नहीं करना. मैंने अपना काम करना है. आई वांट टू रीच द थ्रोन एंड देन एम्पावर अदर पीपल टू डू द सेम. ठीक है, तो मैंने इस तरह सोचा कि यार आई शुड स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट एंड हैव डिफरेंट पीपल दैट आई नो, ब्रिंग देम ऑन एंड टॉक अबाउट, हैव अ वेरी जेनेरिक, और जिसमें दोस्त मेरा आप अभी आपस में बात कर रहे हैं उस तरह करें. मैं अभी लोगों को यही कहूँ, जैसा आपको वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन अर्लियर, कि यार देखो अभी भी कुछ लोग छोड़ गए पॉडकास्ट के, 4-5 गिने चुने लोग हैं जो पॉडकास्ट के. You're doing a sponsorship now. Yeah. Okay? Baby, we did it. You secured the bag. Exactly. And that too very early on. So Yes. that tells you the potential of it, right? Exactly. And again, I would say the same thing to you कि यार 4-5 लोग कर रहे हैं. Throne is empty. Go grab it. Oh, I yes. believe inshallah within a year from now you can be big. Inshallah, Because bro. That's why I reached out to you Yeah. myself. I was like, I see potential in this guy. Yes. And inshallah you'll do big things. I Of know course. that for sure. लेकिन बस एक चीज़ है मेरे रखनी कि यार जो भी आपको कोई कहता ना कि यार इस चीज़ का स्कोप नहीं है, हैव टनल विजन. हैव टनल विजन कि मतलब मुझे जब मैंने शुरू की थी ना ब्लॉगिंग, मेरे लोग मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या ब्लॉगिंग, मेरे अपनी फैमिली में लोग कहते हैं ये क्या ब्लॉगिंग, क्या करेगा, किसने कर लेगा. फिर मैंने जब इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो बड़ा आगे निकल गया, ये हो गया वो गया, उससे हमें भी कभी मिला. Exactly. Because people haven't seen anyone doing such things. जो मैंने इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, I told you the entire story. Yeah. That was a miracle in itself. Bro, I want you to say it again. I want you to recap it here, because Imran, the way this dude did it, ठीक है ना, like I can see a bit of myself in him as well, because he's a hustler. He just goes out there confident, 110%. So, bro, share the story with us, how it all unfolded. यार हुआ ऐसा था, I was in the States at that time. Yeah. I was working over there. तो इमरान खान की जब भी डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, एवरी ईयर नहीं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो या वो अल जज़ीरा बनाती है या BBC बनाती है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलता. I was like, यार I'm gonna go and make Imran Khan's documentary for these elections 2018 की. तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं कहते, आप पागल हो गए हो तुम, अभी 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में, हर कोई इमरान खान, बिकॉज उस वक्त पीक थी इमरान खान की, यू नो एवरीवन वाज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ हिम. तो मैंने कहा नहीं, अब मैं जाके बनाऊंगा इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा.
तो ही वाज लाइक अच्छा चल इस तरह करते हैं कि you take 2 weeks off, you go back to Pakistan, and if it doesn't work out, you come back and you do whatever I tell you. I was like, done deal. Yeah. He's like, I'll record this. Yeah. मैंने कहा record करना. वो video, by the way, I put it on my Instagram as well. Yeah. If you scroll through my Instagram, Yeah. तो वो नजर आएगी मेरे फादर में से बात कर रहे हैं. He's like, you know, telling me कि कब आओगे, किस तरह आओगे. And I'm like, I'm gonna go make his documentary. तो मेरा थोड़ा सा, I'm telling you man, if you're trying to achieve something big, थोड़ा सा पागलपन चाहिए. Exactly. थोड़ा सा होना चाहिए. थोड़ा crack होना चाहिए. थोड़ा सा Yeah. होना चाहिए because अगर आप लोगों की बातें सुनना शुरू हो जाओगे, you won't be able to do jack. Bro, और लोगों का काम ही at the end of the day बातें करना है. तो मैं पाकिस्तान आया. Yeah. And I had my New York Film Academy card with me at that time. ठीक है, तो मैंने कहा यार मैं जाऊँगा. मेरा ये प्लान था कि मैं इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा ना, तो I'm gonna go to his जलसाज और दूर से ना अपना लेंस जूम इन करके उसकी डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाऊँगा. तो I went through the back जहाँ से इमरान खान एंटर होना था. ठीक है, there was like police and everything over there. तो मैंने उनको जाके शो किया कि यार I'm a journalist from the New York Film Academy and I'm here to cover. उनको मैंने ये एक किस्म का शो किया कि मैं अमेरिका से आया हूँ. I didn't give any मतलब देसी touch to it. Yeah. I mean again hustlers mentality. I was like trying to make my way in. I got in, मैं स्टेज पे गया, उधर मैं जाके ना सारों को बताया कि I'm trying to make this documentary on him. I met Faisal Javed Khan over there. तो उसको कैमरास के बारे में उसका इंफॉर्मेशन थी. मेरे जितने भी सेविंग्स थी, थोड़े बहुत पेरेंट्स से मदद किया. आई ब्रॉट माई इक्विपमेंट, लाइट्स, कैमरा, सब चीज़ें मैं लेके आ गया था ना. तो मैं फैसल से मिला एंड ही वाज लाइक, यू नो, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज. एंड आई टोल्ड हिम माय बैकग्राउंड एंड आई वाज लाइक, आई एम ट्राइंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इमरान खान. आई हैव रिटन द डॉक्यूमेंट्री, आई वांट टू प्रोड्यूस इट और सारी चीज़ें मैं आपको कर. ही इज लाइक, टेक माय नंबर डाउन. आई टुक हिज नंबर डाउन एंड कहते मुझे रात को फ़ोन करना. तो आई कॉल्ड हिम, आई थिंक एट 11 रात को 11 बजे मैंने उसको कॉल की. एंड आई ऑनेस्टली हैड नो एक्सपेक्टेशन. मैंने कहा कॉल करके देखते तो हैं क्या होता है क्या नहीं होता. आई कॉल्ड हिम एंड यू नो गेव माय इंट्रोडक्शन अगेन. और मैंने कहा मेरी आपसे मुलाकात थी. मुझे कहते कि यार कल आ सकती हो 2 बजे बनी गाला. kidding me right now, like बनी गाला. Of course I can come. What's happening? Exactly. I was like, yeah, tell me the time, please, I'll be there. मैं बनी गाला गया तो उधर अल जज़ीरा वाले भी आए थे, BBC वाले भी आए थे. अभी उनका प्रॉब्लम ये हुआ अल जज़ीरा वालों का, BBC का, कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बन के आते हैं यूके से अप्रूव होते हैं, उनका बजट अप्रूव होता है, एंड देन दे कम बैक टू पाकिस्तान एंड फिर उनकी बनती है. उनके थोड़े डिलेज आ रहे थे. तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सारा कुछ मैंने उनको ये पिच आइडिया कि मैंने कहा जी आई एम गोना फिल्म द डॉक्यूमेंट्री, आई एम गोना प्रोड्यूस इट, आई एम गोना राइट इट, आई एम गोना मार्केट एवरीवेयर, और मैं आपसे ₹1 चार्ज नहीं करूँगा. अच्छा, उन्हें जब ये सुना कि यार ये बंदा ₹1 नहीं चार्ज कर रहा है, दे पे अ लॉट ऑफ मनी टू दीज पीपल टू मेक द डॉक्यूमेंट्री बिकॉज ट्रैवलिंग, खाना पीना, कितने सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं. तो मैंने कहा आई वोंट चार्ज यू अ पेनी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप माय पोर्टफोलियो एट दैट टाइम. तो वो ने जब सुना तो कहते हैं कि खान से मेरी मीटिंग की भाई फैसल जावेद खान ने, आई पिच्ड हिम द आइडिया, लाइक हाँ इसको दे दो. वाह. और फिर उसके बाद ब्रो लाइक shit blew up and I still to this day मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार वो मेरी ऐसी चीज़ है, मेरे जब बच्चे होंगे ना फिर फेंकूंगा तेरे बाप ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इमरान खान की back in the day, because that in itself is a Bro, huge it's not easy. It's not easy at all. और फिर मैंने उससे ट्रैवल किया, मैं जलसों पे जाता, पीटीआई की टीम पहले होती, मुझे कहती यार ये बाहर से इसको मैं एक दफ़ा अपने कज़न को भी एबटाबाद में साथ लेके गया जलसे पे ना. मैंने कहा तू भी कैमरा पकड़ तू भी यार. और वो डॉक्यूमेंट्री फिर जब मैंने बनाई, मैंने उसको एडिट किया, मुझे अभी तक नहीं पता ये सारा किस तरह हुआ. आई यूज्ड टू वर्क डे एंड नाइट यार. मैं सुबह बैठता, रात तक बैठा रहता था. और डॉक्यूमेंट्री हमने इलेक्शन 21 को इलेक्शन थी मेरे ख्याल में, 18 को मैंने रिलीज की. एंड दैट डॉक्यूमेंट्री ब्लू अप एवरीवेयर. मतलब पीटीआई की हुआ अभी तक टू दिस डे मेरे पास अभी तक स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जिन इदारों में मैं जब अमेरिका से वापस आया था, बिकॉज आई डिड माय डिग्री इन जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग विद न्यू फिल्म अकेडमी से. तो आई ऑडिशनड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर अ जॉब. उन सारे चैनल्स ने, जियो ने, बोल ने, समा ने, AR ने अभी तक मेरे वो डॉक्यूमेंट्री के पीसेस यूज करते हैं. वाह. लेकिन कोई कॉपीराइट का पाकिस्तान में तो सीन नहीं है. लेकिन that itself was a huge achievement. Yeah. And bro, your work. I want to tell the people that now, you know, we met and this is the first time we're meeting, by the way, and we're so comfortable. पता चल रहा है intellect level के top match हो गया एकदम करके हमारा. Bro, मैंने अपने Instagram पे भी लोगों को बताया है. I run my Instagram like a community. That's why I reached out to you. I was like, you know, I see potential in this guy. Let me. और मुझे ये होता है कि मुझे ये पता होता है कि मैंने अगले बंदे को कंफर्टेबल किस तरह करूं. Whether it's an Instagram live session, लड़की है लड़का है कोई भी है,
मैं उनको मुझे पता है कि if I have a general conversation about them about life what they're doing Yeah. वो connection बन जाएगा Yeah. I'm meeting you for the first time Yeah. ऐसा लगेगा यार काफी ऐसा Yeah, लगता है। exactly. तो मैं दोस्ती जल्दी से कर लेता हाँ हूँ जो भी बंदा हो नहीं ब्रो मेरा भी और मैं यही कह रहा हूँ कि अब he's telling me he's made the promo for this, he's made the video for this, वो मैंने चीज़ें पहले देखी भी थी but I didn't know that you've done it. But bro, your work is outstanding. Thank you. Besides anything, you know, you being on the show and whatnot. Yeah. अब जब मुझे पता चल रहा है मैं देख रहा हूँ and I'm gonna be after his ass asking so many fucking questions Yeah, now yeah. कि ये किस तरह वो किस तरह. Bro, now you know the success with Imran Khan's documentary, you making a name out for yourself. Are you still in the pursuit of, you know, following this passion of making documentaries, or have you completely shifted towards acting now? Yeah, I've made a lot of documentaries. Okay. You know, I've Pindi mein because I love the sport of boxing as well. Oh. Boxing, MMA is something. I You're in the love right to do. place, bro. Yeah. तो पिंडी में है लियाकत बाग में एक जगह है पिंडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के Benazir Sport Yes, Complex. that Oh place. yes. यार मैं एक्चुअली आई वाज मेकिंग अनदर डॉक्यूमेंट्री मैं पहलवानी के बारे में Yeah. डॉक्यूमेंट्री बना रहा था एक और वो उसकी बैक साइड पे थी वो जगह Hmm. दैट इज पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का आई बिलीव आई एम नॉट श्योर इट्स ईदर वन ऑफ दोस सबसे पुराना अखाड़ा है Okay. उस जगह से बहुत सारे पता नहीं गामा पहलवान तो पता नहीं हाँ कौन हाँ, से the great पहलवान Gama, bro. थे। Yeah, all these people are Yeah, born yeah. there and trained over there. So I was trying to make a documentary on them. Okay. ठीक है तो जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो उस दिन बड़ी सर्दी तो वो बेचारे सुबह सुबह आते हैं तो आई couldn't film that. Hmm. तो मुझे कहते हैं यार इधर साथ ही एक बॉक्सिंग की एकेडमी है वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं एंड आप जाके उनकी हालत देखें आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री Hmm. यार आई वेंट टू दैट प्लेस एंड आई वाज स्टन्ड Yeah. प्रो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है कॉल्ड बॉक्सिंग कल्चर इन पाकिस्तान Okay. प्रो दीज किड्स पीछे कूड़े की जगह बनी हुई है रोप्स उनकी रस्सियों से लेकिन उनका पैशन उधर एक लड़की भी आई हुई थी द ओनली गर्ल आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आई डोंट रिमेंबर हर नेम बट उस बेचारी का पैशन एंड हर एम्बिशन Yeah. मैंने जब देखा मैंने कहा इनके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री Hmm. तो डॉक्यूमेंट्रीज आर समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप ऑन डूइंग बिकॉज आई फंड देम माई सेल्फ उनको मैं लिखता भी खुद हूँ प्रोड्यूस भी करता हूँ मेरे लिए कोई मसला नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज का तो काम करता रहूँगा साथ पॉडकास्ट Yeah. करता रहूँगा लेकिन then I tapped into acting because acting was something I always wanted to do. Hmm. और And you're made, bro. You're a good-looking guy. If you don't go into acting, I don't know who the fuck's gonna go into acting, bro. मतलब seriously. No man, acting I don't know like I just feel like I can act. Hmm. I've always had this feeling that you know कैमरे के सामने एक दफा मुझे लेके आए मैं एक्ट कर लेता हूँ Yeah. थोड़ा बहुत ना तो फिर सबात happened and Sabat, bro. It Yeah. that blew up. For example, like, bro, I've not seen any Pakistani drama in my life. ठीक है ना? I'm pretty much ashamed of that. लेकिन सबात के पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक मैंने सारा देखा है. In general, bro, ड्रामा बहुत अच्छा था. Yeah. You know, मतलब अब of course यूजली हमारी ड्रामों की वही इश्क मशूकी सेम स्टोरी लाइन लेकिन जो एक्टर्स थे जो मेहनत पुट इन हुई जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी आई थी दैट बिल्ड द एंटायर थिंग it messed me up a lot. या You know, Sabat was, if I was to define Sabat in a few words, so it was a roller coaster ride, man. Like, I remember when मैं अमेरिका में था उस वक्त और उस्मान, I've known Usman for about 10 years and he's like a brother to me. या और उससे मेरी मतलब फिल्म मेकिंग में उससे मुझे बड़ा क्योंकि he was one of the pioneers in Islamabad जो ये फिल्म मेकिंग और ये सब एग्जैक्टली चीज़ कर शेरा ये वो सारे कुछ characters खास कर में रहे है तो मैं उस्मान में उसके मेरी दोस्ती हो गई उससे 10 साल पहले की बात है तो मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी एंड आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम्स कि यार जोई आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग या तो मैं अमेरिका में था एंड इससे मेरा नाम दे दिया उनको कि यार मेरा दोस्त है ही वांट्स टू गेट इनटू एक्टिंग इफ देयर इज लाइक अ रोल और व्हाटएवर तो यू नो ऑडिशन करके देख लें इसको तो उनने जोई ने मेरी तस्वीरें भेजी उनको तो उन्होंने कहा कि यार द पर्सन या जो हमने एक सोचा बनाया ही डजंट फिट द कैरेक्टर बिकॉज आई वाज ओवर मेरा वजन बहुत ज़्यादा था उस वक्त तो वो कहते हैं कि यार अभी देख ले मैंने दे दिया नाम तेरा लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यू डोंट मीट द क्राइटेरिया और व्हाटएवर लेकिन अगर हुआ तो मैं तुझे बताऊंगा या आई केम बैक टू पाकिस्तान तो उस्मान ने ही करवा कि फिर दे वांटेड टू ऑडिशन दे लाइक यू नो कम टू इस्लामाबाद तो मैं इस्लामाबाद गया एंड उस वक्त क्या नाम है आई एंटर हम एंड देयर इज दिस इंडिविजुअल सिटिंग ओवर देयर माइंड यू आई हैड नो आइडिया हु ही इज आई गो जैसे हमारा भी बात करें ना आई गो एंड आई स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन विद हिम सर मैंने ये मैं मेरे से पूछने कि बैकग्राउंड क्या करते हैं एंड ही वाज रीडिंग समथिंग एट द सेम टाइम तो तकरीबन आई स्पोक टू हिम फॉर हाफ एन आवर
तो मुझे कहते हैं यार मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ वापस ना, तो नमाज़ पढ़ के जब वापस आए तो मुझे कहते हैं अभी आपका ऑडिशन लेंगे, तो मैंने कहा यार ऑडिशन एकदम हालत खराब, लाइट्स कैमरास एंड एवरीथिंग, yeah. मैंने कहा पता नहीं क्या होगा इस तरह का। और मुझे उर्दू पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज मैं आई वाज इन 9th grade when I left, और उर्दू में वैसे ही मैं कमज़ोर Yeah. था। रोमन पढ़ता हूँ लेकिन नहीं आती थी, तो दे गेव मी अ फ्यू लाइंस और व्हाटएवर। इन द मीन टाइम उस्मान केम, वो है सारा कुछ बेटर, तो दैट पर्सन कम्स एंड सिट्स बैक अगेन ना। तो मैंने उस्मान को, मैंने कहा यार उस्मान ये शहजाद कश्मीरी कौन है? तो कहते हैं यार वो सामने बैठे तेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा ये शहजाद कश्मीरी? कहते हैं हाँ ये शहजाद Yeah. कश्मीरी है, ही वाज डायरेक्टर। और मैं उनसे दोस्तों की तरह बात कर Yeah. अच्छा उनको उधर कोई चीज़ नजर आई, उन्होंने मुझे एक लाइन दी, कहते हैं यार ये लाइन उस्मान के साथ ज़रा बोलो। तो वो मैंने उस्मान के साथ लाइन बोली एंड आई सॉर्ट ऑफ विंक्ड एट उस्मान बिकॉज आई हैड दैट केमिस्ट्री विद उस्मान ऑलरेडी। Yeah. वो कहते हैं यार इसको स्क्रिप्ट दे दो। उसी वक्त उन्होंने मुझे सबात की स्क्रिप्ट दी एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग हैपेंड। Yeah. अब व्हेन आई से इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, वो इस तरह थी कि यार सबात में मेरी और उस्मान की एंट्री जो थी ना ड्रामा के अंदर, वो सपोज टू हैपन एट द सेम टाइम। आई हैवंट टोल्ड दिस टू एनीवन येट। मैं सबात के अंदर 2 बच्चों का बाप था। अच्छा। मेरे 2 बच्चे थे। पहला उसमें ये था कि आई एंटर उस्मान's क्लिनिक एंड आई गिव हिम द गुड न्यूज़ कि मेरा एक और बेटा पैदा हुआ, एंड आई टेल हिम कि यार क्या नाम है, वो मुझे कहते हैं कि अच्छा मुबारक हो, एंड आई एम लाइक यू नो यू शुड गेट मैरिड। तो इस तरह हमारी एंट्री होनी थी उसके अंदर। तो आई वाज अ फादर ऑफ 2 इन सबात। Okay. लेकिन वो हुआ ये कि वो वाला सीन शहजाद भाई ने, ऑब्वियसली सीन्स वगैरह काट दिए थोड़े, और मेरा एक प्रोमो के अंदर सीन आया which started the entire controversy of the doctor patient relationship जो थी ना, वो स्टार्ट हो गई। उसमें ये था कि मैं उस्मान को कह रहा हूँ कि पेशेंट के साथ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। वो सारे रिव्यूअर्स ने पकड़ लिया, और वो यार आई यू नो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन सच अ बिग टीवी शो। Yeah. ठीक है, एंड मुझे डीएम्स आ रहे हैं लोगों के, एंड देयर वर फ्यू आर्टिकल्स रिटन अबाउट मी एज वेल, और वो कहने के पता नहीं ठरकी किस्म का Oh, fuck. ना। एंड देन आई वाज गेटिंग टैग्ड ऑन फेसबुक बाय डिफरेंट पीपल कि यार तुमने क्या कर दिया मिराज, कि किस चीज़ के अंदर घुस गए हो, ये वो, एंड रिव्यूअर्स पिक्ड इट अप। और वो इतना प्रेशर बिल्ड अप हुआ उस चीज़ से कि दे हैड टू सॉर्ट ऑफ चॉप अ लॉट ऑफ द सीन्स आउट। मेरे 90% सीन्स ही उस्मान के साथ थे। Yeah. तो पहले 3-4 एपिसोड्स में जितने भी सीन्स थे ना, वो मेरे सारे कट गए उसके अंदर से। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई स्टिल रिमेंबर कि जब सबात का आना था, मैंने पहले उसमें किस में, तो माय फादर वाज होल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ फोन ना इन फ्रंट ऑफ द टीवी। Yeah. मैंने कहा ये नेक्स्ट वाला सीन Yeah. और वो नहीं है, तो यार उस वक्त मुझे हुआ ये क्या हो गया, Yeah. किधर What गया a fucking weird moment, Yeah, bro. that was, मुझे समझना है कि यार ये हुआ क्या है ना। और उसने मैं भी डायरेक्टर को फ़ोन किया, तो मैंने कहा शहजाद भाई यार मेरा सीना आपने काट दिया, ये वो सारा कुछ। तो शहजाद भाई कहते नो आप हो इसके अंदर हो। अच्छा ड्रामा के अंदर, मैंने कहा अभी भी नहीं आया। फिर प्रोमो के अंदर आ गया। Okay. उधर से फिर वो जब सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मेरे सीन्स कटना शुरू हो गए, तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। आई स्टॉप्ड वाचिंग सबात। Yeah. आई वाज लाइक यार ये दिस आई गिव अ ईयर टू दिस प्रोजेक्ट, आई लॉस्ट अबाउट 20-25 kilos एंड दैट फॉर अ वेरी स्मॉल रोल। लेकिन एक आपका प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो वो सबात के कुछ सीन्स थे जो बहुत वायरल हुए। एक वो अंगूठी वाला सीन था मेरा उस्मान का, उसके अलावा कुछ और सीन्स थे। That sort of changed a lot of things for me. And now, bro, look where you are. Yeah, bro, I'm nowhere. Honestly speaking, like अगर मैंने 5 मील चलना है ना, तो I've just started walking. Yeah. The journey has just begun. I've put in all the work for like लोग मुझसे अभी, क्योंकि I've started getting a little recognition, लोग पहचान लेते हैं मैं कहीं जाता हूँ तो सारा कुछ। लेकिन bro, I've been doing this for 8-9 years now. मतलब मैंने Facebook से स्टार्ट किया था, मेरा Facebook पे शो आता था, उस वक्त कॉल था नो फिल्टर के नाम से। वो मैंने स्टार्ट किया। मतलब आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लोगों को लगता है कि शायद इसको जल्दी से ये चीज़, लेकिन आई हैव हैड टू वर्क a lot for this. And this is the thing which people should listen and understand, that you should never give up. Tunnel vision. Let me tell you what tunnel vision is for those who don't know. Ki you have your path set, man. Ki you know that, you know, whoever you are, कि I'm going to be here after this much time achieving all of this is going to be in my back pocket, and you have to stick to that, man. Like Miraj said कि बहुत लोग आएंगे जो आपको नीचे गिराएंगे, जो bro, you're starring in the biggest drama in Pakistan, and people are talking shit to you about your controversy. Bro, यही होता है ना। See, the thing with people is there are 2 kinds of people. पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर लोग इस किस्म के मिलेंगे, if you're trying to do something, if you have ambitions, if you have goals, and if you're trying to do something different ना, they'll tap into your insecurities. Because if me and you are friends ना,
तो मुझे पता होगा यार इस बंदे की थोड़ी कमजोरियां क्या हैं, ठीक है। मैं अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के अंदर टैप इन करना शुरू हो जाओ ना, रात को तुम जब कमरे में लेटोगे तुम भी सोचोगे यार शायद ये ठीक ही कर रहा है, एंड दैट्स वेयर वो डिफाइनिंग मोमेंट आती है, यू ईदर गो दिस और दैट वे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं वेयर दे पुश अदर पीपल कि यार तू कर लेगा, कोई मसला नहीं है। I'm telling you now, inshallah you'll be big. Inshallah, you bro. will be big. You've done a lot of great things. तुम्हारा ये sponsor तुम्हें मिल गया तो you've done stuff with Amir Khan. I see a lot of potential in you, honestly speaking. Inshallah, bro. Thank Inshallah, you. You'll go a long way. Yes. Just keep at it. Tunnel vision रखो. बस लोगों के वो जो लोग में नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर लेके आना, that's just white noise. Yeah, bro. Of course. Just अपने इर्द गिर्द वो लोग रखो जिनका तुम्हारे से माइंडसेट मिलता हो। Yeah. And then तुम देखो कि सारे Exactly. success आता है। और शुरू में when I started this podcast and मेरे सामने तो example were you or Ganji Swag or one or two more जो थे इस्लामाबाद में, I used to be like यार मैं इस भाई के मतलब किस तरह level पे आऊँगा, मतलब कि he has such a good setup, you know, he has such good guests, the way he's talking, he's so good looking, like how can I be compared to him even if I put in the time? And now you're on my fucking podcast today. Bro, what's going on? This is so crazy. और bro मैं जब अपना podcast करता था ना तो a lot of times I had a few guests over, they're like यार where's your team? I was like I don't have any team. ठीक है, तो मैं कैमरास खुद सेटअप किए, लाइटिंग खुद सेटअप की, बैकग्राउंड ये वो सारा साउंड भी चेक करूँ, ये भी चेक करूँ, वो भी चेक करूँ। Exactly. तो a lot of problems, and I see the same thing with you. Yeah. You set up everything on your own, and inshallah you have a lot of potential. Inshallah, bro. One man army इसी तरह. Yeah, bro. You know, I'm so impressed by the way you create your content. ठीक है ना? And I want to go in depth more कि आजकल जो अब हमारी society है, they've shifted towards यार bullshit things, bro. Like if you come to think of it, a man जिसकी वीडियो लीक होती है with a prostitute, he's like a fucking superstar now. ठीक है? हमारे लोगों का attention बहुत इन चीज़ों की तरफ है जो मैं क्या बगैरती की तरफ है एक किस्म का। यार आप ये देखो इसका छोटा सा एग्जांपल है, you know, आप डाटा को देख लो ना, ठीक है, if you're under 18 don't watch this लेकिन यार पाकिस्तानी लोग, ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं शायद मेरे ख्याल में porn searches, ठीक है, पूरी दुनिया में क्यों आते हैं? Because sex sells over here, ठीक है, that's the whole thing. Everything that you see with the slightest उसके अंदर अगर कोई उस चीज़ की तरफ है ना indication, आप आसानी से हो जाते हो। मैं ये समझता हूँ यार, look, देखो बुरी अच्छी चीज़ें हर तरफ होंगी, it depends on you whether you want to sell out, whether you want to become a part of them or not. अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यार टिकटॉक बुरा है, टिकटॉक बुरा नहीं है bro, legit content creation हो रही है उसमें। itself is a wonderful platform. The people that are making the क्या नाम है content वो अच्छे नहीं बना रहे content, अच्छे भी हैं बीच में, लेकिन टिकटॉक की ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ब्रो, वो अभी कोई आपको और प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा ऑर्गेनिक ग्रोथ। बिकॉज अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई पोस्टेड दिस ऑन माय इंस्टाग्राम द अदर डे एज वेल, यार all these top actors actresses, sorry again but I'm gonna have no filter again, यार सारे followers खरीद रहे हैं, सारे engagement खरीद रहे हैं, likes खरीद रहे हैं, even comments खरीद रहे हैं। This was big in India, now it's come to Pakistan as well. So I'm telling you, organic reach is gonna be dead on Instagram. तो you have to मैंने जब शुरू किया था फेसबुक से, मेरे को यार मुश्किलों से मर के अभी 50,000 फॉलोअर्स हुए हैं, लेकिन फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड टू लाइक अ बिजनेस मॉडल वेयर दे वांट यू टू स्पॉन्सर। एग्जैक्टली। अभी इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ऑन करते हैं, आहिस्ता आप देखोगे उस पर भी ऑर्गेनिक रीच खत्म होती है, बिल्कुल। तो फिर वो कोई और प्लेटफॉर्म, YouTube I feel like if you make it big on YouTube, then you have a lot of potential. Exactly. And YouTube की जो ऑडियंस ना आपके साथ बड़ी अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहती है और वो कम्युनिटी की तरह रहती है। So I feel like YouTube is something that you should keep on doing. Explore these other places as well. लेकिन क्या करें यार, अब I just feel like anything that's cringy has a good chance of doing well. But you know, content which is good, the type of content that you're making, मुश्किलों से बंदा मर के यार तुम 3 घंटे लगाते हो, गेस्ट को बुलाते हो, ये चीज़ें सेटअप करते हो, एडिट सारा खुद करते हो, उसके बाद बैठते हो, कहते हो यार 200 व्यूज़, तो बंदे की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी यार हर किसी ने यार ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं। MCNs खोले में, मल्टी चैनल नेटवर्क्स, वेयर दे पोस्ट, you know, there's like a bigger channel, they post you in their community. मतलब ऑर्गेनिक बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं, और वो जिनको लोगों को तरीके पता है वो आगे जाते जा रहे हैं, और मोस्टली वही हैं जो जिनका कंटेंट आई पर्सनली डोंट वॉच इट, अदर पीपल वॉच इट देन या गुड फॉर देम, बट आई डोंट वॉच इट। You know, I like watching content like yours, like you know, other podcasts. मतलब
bro, the thing with me is like if I sit down with someone, if I can't have an intellectual conversation, या अगर मुझे आपके अंदर intelligence नजर नहीं आ रही, I won't be able to speak to you for long. Exactly. You know, I want to speak with someone where we can jump from topic to topic. Exactly. And, you know, talk about different things. Yeah. अब एक टिकटॉक पे लड़का या लड़की उससे मैं क्या पूछूंगा, हाँ. मतलब जिंदगी के बारे में, MMA के बारे में, whatever it is. Yeah. मतलब आपका जिंदगी में कोई पैशंस हो, आपकी कोई डिफरेंट चीज़ों के बारे में फोकस हो, तो देन आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन. Exactly. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. मतलब अगर तुम्हारा टिकटॉक पे स्पैन है 15 मिनट्स का, तो आई प्रॉब्ली 15 सेकंड्स का, तो रियल लाइफ में कितना 30 सेकंड का होगा, तो फिर फायदा नहीं है. Yeah, true. And bro, अब you know, now you're done with Sabat. We were talking a bit earlier. You're like you're getting offers from here, there, and everywhere. So now what's the situation that what do you like? What is Miraj going to do next? Yeah, I want to act. Okay. But I will be very picky when it comes to choosing projects. Because यार हमारा television industry में ना अच्छा लोगों में एक ये भी misconception है कि a lot of people want to do films in Pakistan. यार उस्मान की एग्जांपल आप लेके देख लो. You know, I have known him for 10 years. उसने 2 films की थी, पर्ची and Janan. Yeah. He didn't get the same exposure that he got from Ana. Yeah. When Ana came out, he blew up. Yeah. ठीक है, and everyone was like फवाद खान ये वो सारा कुछ. और मैं तुम्हें अपनी Instagram पे पोस्ट दिखाऊंगा भी, where like काफी साल पहले मैंने कहा he is one of the finest actors that we have in the country. Exactly. People are just now giving him the credit. Yeah. उसके लिए उस्मान didn't want to do dramas for the longest time, लेकिन ड्रामा जो है ना, ड्रामा इंडस्ट्री वो लोग देख रहे हैं. अभी फिल्म्स का अभी वक्त लगेगा. Yeah. फिल्म्स बन भी नहीं रही. True. Pandemic भी आया हुआ है, तो it's going to take some time for films to sort of grow. Yeah. But I'm telling you, man, Islamabad is going to become the hotspot in the next 4 to 5 months. Hopefully. Warna abhi it's Karachi, right? Abhi it's Karachi. A lot Yeah. of the main channels are in Karachi, लेकिन a lot of new channels are opening up in Islamabad. Yeah. कुछ इधर shift हो रहे हैं. तो अगर आप young actor या actress and you want to get into the field, Yeah. now is the perfect opportunity for you to sort of, you know, get into the field. Because Islamabad में I feel like different agencies भी आएंगी, actresses भी आएंगे. बिल्कुल. साल के ज़्यादा dramas बनने Yeah, शुरू हो जाएंगे. yeah, तो yeah. I'm telling you, you'll see a lot of great talented people come up in Islamabad. Hopefully. And bro, Islamabad का मैंने जो अभी तक देखा है कि you know, content wise काफ़ी चीज़ें इधर अब grow हो रही हैं. People are getting that concept कि हम you know तरीके से content बनाएं, अच्छा बनाएं. Now you have these bloggers, you have these you know podcasters, sport podcasters. अब जो athletes भी हैं, they're also getting it into, because अब यार इतना अब the reason I started all of this was honestly because to support our local talent. ठीक है ना, mixed martial arts में. उसके बाद मैं आगे जाता गया, मैंने देखा कि यार इन लोगों को कोई recognition दे ही नहीं रहा. और ब्रो देखो, जब कोई नेशनल हीरो बनता है ज़्यादातर एथलीट ही होते हैं. ठीक है ना, आप रोनाल्डो को देख लो, आप कितने लोगों को देख लो, कॉनर मैकग्रेगर आयरलैंड का है, मोहम्मद अली, everybody knows him around the world. Either nobody gives a shit about them. Ab now Amir Khan came on my podcast and he was like, yaar, I go to the PM, I try to explain to him कि इस तरह we have to promote boxing. He's like, do we really need to promote boxing? That's the thing, man. I mean, it's gonna take a lot of time for our people to understand. I also feel like, you know, जो अभी government में लोग हैं और जो हम जैसे लोग हैं, there's a generational gap between them. Yeah. They don't understand the things that are coming. आगे मैं बता रहा हूँ, bro. I'm telling you, if you're into the space of, you know, creating content, digital is the way to go. तुम्हें क्यों लगता है यार ये सारे एंकर्स YouTube पे आ गए छोड़ के? क्यों लगता है? मुबश्शिर लुकमान देख लो, शोएब अख्तर देख लो, सब आ गए YouTube पे. ठीक है, और अब क्योंकि इतना ज़्यादा वो आगे कंपटीशन और सारा कुछ, तो YouTube का बैन वाला सीन भी नहीं होगा इंशाल्लाह. ठीक है, उनको ये लगता है यार जहाँ हम जाते थे टीवी चैनल से ख्वार होते थे, तनख्वाहें नहीं मिलती थी, ये नहीं वो नहीं, डॉलर्स में बैठे कमा रहे हैं, कंटेंट वही कर रहे हैं सारा कुछ, और घर पे छोटा स्टूडियो सेटअप करके मेकिंग बैंक. और स्टूडियो भी नहीं ब्रो, कैमरा लगाया हुआ है उनने, कैमरा लगाया हुआ है, 5 मिनट की बात करते हैं, they get like 200,000-300,000 views. और bro, YouTube is blowing up, and you know, I just hope कि people understand कि how important it is, especially like you said, जो अभी generation gap आया हुआ है ना, ये चीज़ मतलब for example, the way you said कि your dad wasn't, you know, he didn't believe you that you could get it done. ठीक है ना, you could go
जब मैंने भी शुरू किया था, ऑफ कोर्स माय डैड वाज मोटिवेटिंग, बट ही हैड दिस थिंग बिहाइंड हिम यार कि लाइक एक चीज़ कितनी चल सकती है, मतलब मैक्सिमम यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन, नोबडी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है. Yeah. अब लोगों में वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, एंड अल्लाह करे यार कि हमारे लोग ये चीज़ पॉजिटिवली लें एंड नेगेटिवली ना लें. यार one thing I will tell you, look, if you're doing something creative, आपको सारी दुनिया अगर कह रही है कि मत करो मत करो मत करो, if you have the support of your parents, I'm telling you, if your parents support you, तुम्हें और कोई दुनिया की चीज़ गम नहीं दे सकती. My parents have been there for me through everything. यार वो पूछते हैं कि यार ये क्या है, इसका क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में रिसर्च भी करने की कोशिश करते हैं, but they're like, you know, if you feel like this is the way for you, go for it. जाओ करो. रोकते नहीं है उस चीज़ के लिए. तो that's the biggest thing. If you have the support of your parents, then just have tunnel vision, keep बस focus रखो और घुस जाओ. True. और इसी तरह ही होएगा. And bro, अब you know, like you mentioned earlier, मैं सोचा था कि you're 100% right कि अगर आपने पाकिस्तान में एक्टिंग में घुसना है, if you want to get renowned, या if you want to showcase your talent, drama is the best thing right now. पाकिस्तान में फिल्म्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है bro? Bro, screens नहीं है ना यार, 250 screens in total. यार पूरे पाकिस्तान में the last time that I checked, I think पाकिस्तान में जितने भी सारे इधर प्रोडक्शन हाउस हैं, सारा के मिल मिला के मेरे ख्याल में कोई 75 रेड कैमरास हैं. ठीक है, मुंबई का तुम एक छोटा सा स्टूडियो देख लो ना, उसके अंदर ज़्यादा होंगे. यही तो बात यार, whatever that you try to take, whether it's sports, whether it's film making, सारा कुछ. मैं अमेरिका में पढ़ता था ना जब हाई स्कूल में, तो यार when I used to go out on, मैं ट्रैक करता था अपने हाई स्कूल में. ट्रैक की प्रॉपर फील्ड्स बनी हुई हैं, मतलब अगर किसी ने अमेरिकन फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल है, सॉकर है, प्रॉपर हर चीज़ की उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं. हमारे लोगों के पास फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी इतना टैलेंट ऊपर है. सोचो अगर यार उनको फैसिलिटीज मिल जाए. मैं कितनी दफ़ा दुआ करता हूं कि यार अल्लाह हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो सॉकर खेलना चाहते हैं या बॉक्सिंग करना चाहते हैं, उनको ये वाली फैसिलिटीज मिले ना, तो तुम देखो किधर जाते हैं. एग्जैक्टली ब्रो. हमारे पाकिस्तान में डिजिटल एजेंसीज खुल जाए, इन्फ्लुएंसर्स को बनाना शुरू कर दे, उनको यार कोई उनको इंस्पिरेशन तो मिले ना कि यार ये ठीक तरीका है. अब सारे बच्चों को, या लड़कियां ये जो आ रहे नए बच्चे आ रहे हैं, इनको यार fame is something I think everyone wants one way or the other. Exactly. Everyone wants to be known, everyone wants, you know, the likes and जो हमारा कल्चर चल रहा है. अब वो बच्चे देख ही रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ें करेंगे या हम अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करेंगे तो we're gonna get the likes, we're gonna get the followers. तो everyone's following the same trend. तो ये वजह ना, there's inspiration मिल भी रही है, तो वो थोड़ी साइड ट्रैक हो रहे हैं. True. से मतलब मैं चाहता हूँ कि यार अभी जिस तरह आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इस तरह 10 और इस्लामाबाद पॉडकास्ट कर रहे हो. ठीक है, अब आपको चाहिए लोग इंफॉर्मेशन के लिए, there's a lot of other people that have done it in the past. You can reach out to them. Exactly. और होंगे अच्छे लोग हैं, help out करते हैं सारा कुछ. But you just have to be a go-getter, और जो भी करना है, just have a hustler's mentality. Exactly. Learn how to hustle. पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा ये है यार, हमारे पाकिस्तान में हम इस वजह से देखते हैं. You said you're 25 now. You've just started doing this now. Exactly. तुम ये सोचो अगर तुम अमेरिका में होते ना, if you were like 13, 14, 16 साल के होते हैं तो मैं माँ को कहते चलो निकलो घर से. Find your own passion, learn how to be self-sustainable. Exactly. खुद कमाओ, खुद खाओ, फिर तुम हसल करना शुरू करो. That's why you see so many YouTubers over there. Yes. जिन्हें कोई और तरीका नहीं मिलता. You see Logan Paul, young millionaire, 18, 19 में millionaire. हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों, उनको ये होता है कि 25-26 साल तक तुम माँ बाप के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल्स ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. वो जब 25-26 के पहुंचते हैं तो उनका वो लेवल थे जो अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में 17-18 साल. एग्जैक्टली. फिर वो हासिल करना शुरू करते हैं, सीखते सीखते बाय द टाइम दे 30, तो उस वक्त जाके दे बिकम सम, कुछ ना कुछ हो जाता है, बट इट्स सपोज्ड टू बी 10 years before. 10 years before, when you're like, मैं ये कहता हूं ना, my brother's younger, मतलब एक ही बेटी है उसकी, her name is Ziva. मैं अपने भाई को कहता हूँ यार ये by the time she's like 14-15, she should know what she wants to be in life and just support her. But उसको ये पता हो कि ये मैंने करना, उसके पीछे पड़ जाए चीज़. Just support her. Exactly. तो वो इधर चीज़ें हम लैक कर रहे हैं ना, कि अब तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनको तुम ये चीज़ें इंस्टिल कर सकोगे जो अभी लोग उधर अमेरिका में कर रहे हैं. True. तो it's going to take some time. और फिर साथ ये होता है कि पाकिस्तान में when you're in your 25-26 usually होता है कि शादी शादी के बाद बच्चे, तो वो बंदे की वैसी मोटिवेशन खत्म हो जाती है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. तो आई एम टेलिंग यू मैन, जस्ट हैव टनल. शादी जरूर करो, लेकिन पहले मेक योर गोल्स, योर एम्बिशन द प्रायोरिटी. एग्जैक्टली. जब तुम वो रीच कर जाओगे तो शादी तो होती रहेगी. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड बाय द वे? Bro, I have no plans as of now. Good. I'm married to my goals for now. Likewise. Likewise. Goals reach कर जाऊंगा तो you know when it's supposed to happen will happen.
but I have no plans of getting married for now. लेकिन अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है क्या पता अभी आप इधर से बाहर निकले कोई मिल जाए वो कोई पता नहीं कि क्या होता है लेकिन I don't have any plans of getting married. I have too many goals, too many ambitions. I was discussing with this a friend of mine. मैं ये कहता कि मैं जो मैं फ्रंट फुट पे खेलने वाला खिलाड़ी हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो दूसरा खिलाड़ी हो वो भी फ्रंट फुट पे खेलने वाला ना हो, बिकॉज अगर पार्टनरशिप चल रही है तो एक को थोड़ा आहिस्ता खेलना पड़ता है, एक को थोड़ा तेज खेलना पड़ता है, तो मैं अभी वो रिस्क नहीं ले सकता। yeah. I'm just too focused on yeah but यार मेरा एक दोस्त है तालिब, he told me he got married at 23 24 and he's like यार देख हमने करनी तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे करनी है। मैं 30 साल की उम्र में करूँ, 20 की में करूँ, 25 में करूँ या 40 में करूँ, करनी है। सो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट इट। तो मैंने जरा मतलब व्हाई डोंट यू गेट मैरिड। मैं सोचा 2 मिनट, मैंने कहा हाँ यार मतलब ठीक है अगर करनी तो है एक सोसाइटी में। अब इस तरह इधर तो नहीं सीन होता ना पाकिस्तान में कि 40 साल की उम्र तक किसी की शादी ना हो, 40 से 30 क्रॉस कर जाए लोग बातें करेंगे कि भाई क्या सीन है, भाई क्या हो रहा है, जवान लड़का है शादी क्यों नहीं कर रहा, गंद में पड़ा हुआ है, ये कर रहा होगा वो कर रहा होगा। So what I think is कि खैर we're getting carried away, saying शादी कहाँ से आ गई है, but लेकिन you know what I believe is if you have to do something, I think it's better you should just go out and do it. So you have that thing out of the way, and again it depends on your partner. If he or she is very supportive, ठीक है आपको करें, ये ना होना कि फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हो जाए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ही ना कर सकें। और कॉन्सेप्ट ही हमारे इधर ये है कि शादी करो, माँ बाप को लुटवा दो, ठीक है ना, आपने हर चीज़ बेच बूझ के एक खाने के लिए, एक ड्रेस के लिए, एक फोटोशूट के लिए, you're totally bankrupt. And this is the concept which, you know, a lot of my friends now who weren't married, one function bro, maybe 7-8 लाख टोटल खर्चे जो लोग करोड़ों खर्च जाते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में आ गया है, which I'm like wow, this had to happen and thank God it's happening. What's your take on that? ये अच्छी चीज़ है। Going back to the topic of शादी again, यार देखो बात ये कि that's one way to look at it. Now there's two things. यार अभी तुम पॉडकास्ट कर रहे हो ना, ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारा बच्चा हो, तो हो सकता है तुम्हें दौरान मैसेज बच्चे का दूध तो मुझे आप भाग के लेके आ, ठीक है, तुम्हारे ऊपर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन द सेकंड थिंग इज कि आर यू फाइनेंशियली स्टेबल टू यू नो गेट इनटू अ रिलेशनशिप। दैट्स द मेन थिंग। या आई मीन इफ आजकल की अगर तुम लड़की से बात करते हो, आई मीन होते हैं, लेकिन मैं उस ओल्ड स्कूल की थिंकिंग से हूँ, या मैंने वो चीज़ें देखी कि पहले शादी होती थी 20-21-22 साल की एज में, वेयर द गाय वाज यू नो finding his passions, or he was trying to you know become someone, and the girl was just as supportive. ठीक है, they would build something together. आजकल यार मैंने देखा है, I might be wrong, लेकिन कॉन्सेप्ट इस किस्म का हो गया कि पक्की पकाई चीज़ चाहिए। Sir, you're not wrong at all. मतलब है उस भी है, लड़का इतने कमाता हो, माँ बाप के साथ ना रहता हो, उसकी गाड़ी हो, ये हो वो, तो यार अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए तो he has to obviously you know make someone make out something out of himself first. तो उसको ऑब्वियसली वक्त लगेगा। तो पहले वाले ज़माने तो ख़त्म हो गए कि यार स्ट्रगल साथ की, मैंने साथ की, हम 18 साल की उम्र में शादी कर ली, मुकाई, तो फिर मेरे भी 3 बच्चे होते हैं मेरे खुद। लेकिन अभी तो उनको कॉन्सेप्ट चेंज हो गए ना विद टाइम। तो ये होगी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होगी कि यार अगर तुम कुछ करना भी चाह रहे हो, इफ यू ट्राइंग टू गेट इनटू एक्टिंग, पॉडकास्ट वगैरह, शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए, तुम्हें टाइम देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। फिर फैमिली का टाइम अलग हो गया, माँ बाप का टाइम अलग हो गया, बीवी बच्चे का अलग हो गया, देन यू डूइंग पॉडकास्ट, देन यू वांट टू वेंचर इनटू अदर थिंग्स, मुश्किल हो जाता है। ट्रू यू नो, या फिर गोल्स को अचीव कर लो या फिर शादी कर लो, दोनों में से एक है। अभी द नॉर्म फॉर नाउ इज कि यू नो यू ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज, फैमिली का प्रेशर होता है, शादी करो, शादी के बाद बच्चे अब एक हो गए तो दूसरा भी होना चाहिए, तो फिर वो इट्स goes downhill for you. Yeah, like uphill in a way as well, but downhill, mostly downhill. How you look at it. I mean, if you find a really good partner that you're compatible with and they understand your vision and everything, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मतलब तुम्हारी आपस में compatibility नहीं है और मसले ही आ रहे हैं, तो फिर it's better कि you just wait and find the right time when you feel like you're mentally ready. It's all about when you feel like you're mentally ready. अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं अब तैयार हूँ शादी के लिए, तो बिस्मिल्लाह करो, कर लो शादी, and I wish you the best of luck. Bro, अच्छा शादी से linked, अब माशाल्लाह you're a good looking guy, लड़कियां तो अब आप पे पहले भी मरती होंगी, अब और थोड़ा ज़्यादा मरती होंगी, तो कभी दिल टूटा है? यार यस हुआ है। मतलब लड़कियां अभी मेरा उस दिन मैं अपने कज़न से बात कर रहा हूँ, उसको मैंने उसकी पीछे एंगेजमेंट हुई है ना,
तो मैंने उसको मुबारक दी अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसको कहते यार भाई मुझे 20-25 रिक्वेस्ट आ गई लड़की की, क्या सीन? मैंने कहा थिंग इज हमारी औरतें ज़्यादातर ड्रामास को देखती हैं वेदर इट्स ऑन यूट्यूब, तो मेरा भी रेशो बड़ा कोई अनबैलेंस है बिकॉज 80% जो मुझे फॉलो करना है वो लड़कियां हैं और 20% लड़कियां हैं, तो बहुत रेशो मिक्स हुआ है। लेकिन यस यार आई मीन किसका नहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन आई थिंक इट टीचेस यू अ लॉट। But how do you cope up with it? Bro, time is the best thing that teaches you, और कोई तुम्हें चीज़ नहीं ठीक कर सकती, वक्त देना पड़ेगा आपको। If you go through a heartbreak, अगर तुम समझते हो ना कि तो एक तो आप भूलते नहीं उस इंसान को, जो आपको कहते हैं कि आप भूल जाते, you don't forget that person. But at the same time you look at you know what went right, what went wrong, और बेहतरी होती है उस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारा अगर तुम sincerely involved थे एक दूसरे के अंदर, because the thing with me is like if I get into a relationship I give it my everything, और मैं कभी भी time pass या इन चीज़ों के लिए if I want to get into a relationship I want to marry the person, ठीक है? तो बिल्कुल होता है and I've gone through some dark times as well, but it's how you come out of it. I mean I've dealt with so many other things, so that was something. When you start comparing these things, कि like if like अब कुछ लोगों का जब हार्ट ब्रेक हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, बिल्कुल देवदास बन जाते हैं, तबाह, ये आता 100%, but during then, for example, if you compare your situation to someone else's, for example, like if someone has dealt with a severe loss in the family and you're like यार अच्छा 2-3 साल का सीन था, दिल टूटा मेरा, लेकिन what he must be going through, that person who's dealt with the loss, or a kid, like that's my way of thinking कि मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं इस मसले डील कर रहा हूँ, क्या पता कोई बच्चा किसी कोने में आज होमलेस रात को सो रहा है, वो किस मसले से डील कर रहा होगा। मैं कंपेयर करके कहता हूँ कि यार परफेक्ट। दो चीज़ें इसमें ब्रो कि हमारे लोग हम जो है ना हमेशा अपने से ऊपर के इंसान को देखते हैं। यार मेरे 20,000 फॉलोअर उसके 30 में 30 पहुंच, अपने से नीचे को नहीं देखते यार, उसके तू देख। इफ यू हैव फूड ऑन द टेबल एंड इफ यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह रूफ ओवर योर हेड, दो वक्त का खाना मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह you're fine. There are people out there sleeping on the streets who don't have anything. तो उनके बारे में सोचना तो बेहतर होता है। और दूसरा गोइंग बैक टू द हार्ट ब्रेक थिंग, यार एक दफ़ा आपको हार्ट ब्रेक हो जाए ना, आपको एक्टिंग बड़ी अच्छी आ जाती है। आई एम टेलिंग यू, मुझे कोई अब रोल मिले ना हार्ट ब्रेक वाला, वो जो सारा अंदर मेरे गुस्सा हुआ ना वो मैं निकाल सब निकला, ये बॉय की अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। अच्छा ब्रो, आई थिंक द टाइम इज अप, जो मैं लगता हूँ बिकॉज यार ये लोग देखते नहीं है ज़्यादा 10-15 मिनट से, लेकिन इंशाल्लाह अब मिराज आए देखेंगे। Bro, it was an honor. Thank you. You reached out. It means the world to me. You are a person who influenced me, who motivated me to start something like this. You're here today, and I promise everyone, whenever Miraj wants to be on here, and the next time he's in some film, drama, making a documentary, anything, he's gonna be on the show again. If it's for 10, 15, 20, 2 hours, I don't care. But bro, thank you so much. Bro, honor being here, and I wish you the best of luck with everything that you do, whether it's acting, whether it's your podcast. तुम जाओगे आगे, मैं तुम्हें इंशाल्लाह ये podcast सेव रखिए। Oh yes bro, साल बाद हम इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। Done. We're gonna do a lot. We're gonna recap. Do you have any message for the fans, bro? Yeah, firstly please subscribe to his channel, support this guy, he's doing wonderful work, and like I said before, मैंने बहुत दफा कहा, लेकिन he has a lot of potential. उन लोगों को सपोर्ट करो जिनके अंदर जेन्युइन टैलेंट है, ताकि वो ऊपर आए। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू सपोर्ट समवन हु इज डूइंग गुड वर्क नाउ, ही इज गोना गिव इट बैक टू द नेक्स्ट पर्सन। सो सपोर्ट हिम नाउ, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, and inshallah I cannot wait to come back and see you with 100k subscribers. Inshallah bro, inshallah. Ladies and gentlemen, episode number 29 with Miraj, the rising superstar in Pakistan, drops very soon. Like, subscribe and share. Follow Miraj on Facebook, Twitter, Instagram. Go watch his documentaries because I swear I've seen the content. It is brilliant. There's no one like this in Pakistan. Like, subscribe and share. Miraj, ring the bell.